میں گزارش کروں گا سسٹر ریبیکا سے کہ پلیز کم فارورڈ اینڈ وہ متی رسول کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 13ویں آیت سے 23ویں آیت تک پڑھے گی، اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا بھائی آسٹن سے کہ وہ آ کے پاس رک رہے ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے متی رسول کا انجیلی بیان اس کا دوسرا باب 13ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خدا ان کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خدا کے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت الحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیاہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں گیا، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ خدا ان کے پاک نام کے پڑھے اور سنے جانے پر آمین۔ خداوند کے زندہ نام میں ایک بار پھر آپ سبھی کو میرا سلام۔ خداوند کا شکر ہے کہ ایک بار پھر ہم اس کی عبادت گھر میں اکٹھا ہے، اور شکر کرتے ہیں اس چرچ کا بھی، سینٹ چرچ کا بھی، جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پر رہ کر اس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اگین، چاہے تھوڑے ہو چاہے زیادہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم خدا کے ساتھ ہیں، خداوند ہمارے ساتھ ہے، یہ ہونا زیادہ لازمی ہے۔ میں انگلش میں صبح سروس کر رہا ہوں تو میں کو کہیں پر کچھ انٹرنیٹ پہ ملا جو میں نے پڑھا، اور میں آپ کے ساتھ میں ہندی میں یا اردو میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ لکھا تھا کہ میں اس کی میز کے پاس گیا، ایک بچہ تھا، وہ اس کی اپنے استاد کی میز کے پاس گیا، اور استاد کی میز پر جا کر کہتا ہے کہ جو پنہ تم نے مجھے پچھلے بار دیا تھا، کیا میں ایک اور نیا پنہ تجھ سے لے سکتا ہوں؟ کیا ایک نیا کوڑا پیپر میں تجھ سے لے سکتا ہوں؟ ایک نیا لیف میں تجھ سے لے سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا تو نے پرانے والے کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے پرانے والے کے اوپر میں نے بتیرے دھبے ڈال دیے، میں نے اس کو توڑ مروڑ دیا، اس کو کچوڑ دیا، اور وہ کسی لائق نہ رہا۔ تو کیا میرے استاد میں ایک اور نیا پنہ، ایک نیا کوڑا کاغذ لے سکتا ہوں تاکہ میں اپنے ان جو ٹیچنگز ہیں، جو آپ کے جو نئی باتیں ہیں، میں اس پنے کے اوپر لکھ سکوں؟ استاد نے کہا ٹھیک ہے میرے بچے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لا یہ پرانا پنہ مجھے دے اور ایک نیا پنہ مجھ سے لے لے۔ اس کا دوسرا پارٹ یہ تھا کہ اس کے بعد میں اپنے خداوند کے تخت کے آگے اپنے گھبراتے ہوئے دل کو لے کر گیا، اور میں نے کہا خدا باپ، کیا ایک نیا سال میری زندگی میں مجھے
मिल सकता है। और खुदा ने कहा तूने पुराने वाले के साथ क्या किया? उसने कहा मैंने उसमें दाग और धब्बे और गुनाह से उसको भर दिया है। क्या एक और नया साल मेरी जिंदगी में दिया जा सकता है? खुदावंद ने हंस के कहा कि ला वो पुराना दाग और धब्बे वाला साल मुझे वापस कर दे और ये ले एक नया साल मैं तेरी जिंदगी में जोड़ देता हूँ। गो एंड डू वेल माई चाइल्ड, गो एंड डू वेल माई चाइल्ड। वह हर साल हमारी जिंदगी में ये लम्हे आते हैं, है ना? जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर एक की जिंदगी में ये समय, ये साल जरूर आया है कि हम जनवरी में उस एक नई डायरी को, उस एक नए कोरे कागज को खोलते हैं और दोबारा उसमें एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। पुराने गुनाहों से माफी मांगते हैं और नए गुनाह करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, है नहीं? नई बरकतें पाने के लिए तो तैयार होते हैं, मगर खुदावंद के उन नई बातों को जो वो हमें रिवील करना चाहता है, हम उन पे काम करना नहीं चाहते। एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदावंद परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में नया साल जोड़ दिया है। 2022 जाता रहा, 2023 एक नई नई मिस्ट्रीज को, खुदावंद की मिस्ट्रीज को लेकर आज हमारे सामने है। एक नया पूरा पन्ना हमारे सामने है। अब इसमें आप क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए 2022 जो था बड़ा पेनफुल था। इट वॉज अ सोर वन, कहते हैं ना इंग्लिश में, इट वॉज अ सोर ईयर फॉर ऑल ऑफ देम। कुछ लोगों ने अपने जो अजीज थे उनको खो दिया। कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा टाइम आया, उनका बिजनेस बंद हो गया, उनकी जॉब छूट गई, या कुछ ऐसी नई बीमारी उनके साथ लग गई जो अब उनको पूरी जिंदगी झेलनी पड़ेगी। कुछ लोगों के साथ अच्छाई हुई, कुछ लोगों के घर में नया बच्चा पैदा हुआ, कुछ लोगों को नए बिजनेस खोले, कुछ लोगों को नई जॉब्स मिली, और कुछ लोगों के लिए सक्सेस भी वहां थी। मोस्ट ऑफ लोगों से आप बात करें, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, अपने कॉन्ग्रेगेशन से बात करता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, और हम पूछते हैं कि भाई पिछला साल कैसा गया? बस कट रही है भाई, है ना? हर कोई ये कहता है बस कट रही है। मगर जब आप उन्हीं लोगों से बात करें कि 2023 कैसा होगा, तो उनको एक नई उम्मीद होती है, एक नई एक्सपेक्टेशंस होती है, एक नया विजन देखने की चाह होती है, एक नई शुरुआत करने की चाह उनके दिल में होती है ना? किसी से भी आप पूछ के देखें, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं 2023 को या 2024 के अंदर लानत कमाना चाहता हूं, है ना? या मैं खुदा से बरकत लेना नहीं चाहता हूं, या मैं नई कोई ऐसी बीमारी अपने ऊपर लेना चाहता हूं जो मुझे 2022 में नहीं थी, वो 2023 में मुझे। हम हर कोई ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए नया साल नई चीजों को, नई बरकतों को, नई अच्छाइयों को, नए लोगों को, नई बातों को लेकर आएगा, और हम प्रॉस्पर होंगे। जितना हम 2022 में, 2021 में, 2020, 19 में डिक्लाइन हुए कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, या किसी और की वजह से, वो 2023 हमारे लिए कुछ नई उम्मीद को लेकर आएगा। मगर मैं जब उन लोगों से बात करता हूं तो मैं उन लोगों से कहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हम मसीह हैं। हमारे लिए साल कुछ नहीं आता, हमारे लिए खुदा नई उम्मीद लेकर आता है। आई थिंक ये क्वेश्चन ही गलत है कि ये नया साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। हमें ये कहना चाहिए कि हम इस नए साल में अपने आप को कैसे चेंज करेंगे, राइट? साल हर एक की जिंदगी में आ रहा है, क्या उनकी जिंदगी में खुदा है या नहीं, वो खुद लोग जानते हैं। मगर ये क्वेश्चन ही गलत है कि ये नया साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। हमें ये कहना चाहिए कि इस नए साल में हम खुदावंद को कैसे फॉलो करेंगे। वो जो भेड़ 2022 के अंदर भटक गई थी, वो 2023 में अपने खुदा की आवाज सुनकर सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे चलेगी। इस बार मोदी सरकार, दीपक भाई समझ सकता है, इंडिया वाले है ना हम लोग। इस बार मोदी सरकार नहीं, इस बार खुदा की सरकार। That's what we need to claim. हमारी जिंदगी में साल कोई सा भी आए, चाहे 2050 आए, चाहे 2090 आए, doesn't really matter, because if you follow the way of Christ, every year will bring you challenges, but it will bring you success as well. It will bring you failures. वो आपकी जिंदगी में असफलताओं को लेकर आएगा। पता नहीं आपको क्या कहना, असफलता, अनसक्सेस, नाउम्मीदी को लेकर आएगा,
मगर जब आप खुदा के पीछे चलते रहेंगे, उस नाउम्मीदी में भी वो एक नई उम्मीद को आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। एंड दैट इज द क्वेश्चन we should be asking. We shouldn't be asking what this 2023 will bring us. We should be asking what will we bring on the plate for the Lord. What do we bring to our community? What do we bring in our church? What do we bring in our Christian community? That is the question we should be asking to ourselves. अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने स्किल्स से, अपनी जॉब से, अपने आप से हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम खुदावन के लिए क्या करेंगे, या ये साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो साल बीतते जाएंगे और हम सिर्फ दुनिया के साथ अपने आप को मिरर करते रहेंगे, और जब दुनिया के साथ मिरर करते हैं, दैट इज ओनली evil. Only God can bring you righteousness. If you try to mirror to the world will always bring you evil, because world is contained with evil. Remember, जो खुदा से बाहर है वो खुदावन नहीं है, वो evil है, वो शैतान की तरफ से है, और हमें उसके साथ उसके पीछे चलने की जरूरत नहीं है। कहता है ना कलाम, आप एक बार में, नॉर्मल लोग कहते हैं दो नाव में एक बार में पैर रखकर नहीं चल सकते, डूबोगे एक नाव में पैर रखो, ठीक है ना। आप कलाम कहता है हम दो मालिकों की एक बार में सेवा नहीं कर सकते, या तो हम खुदावन के हैं और या फिर हम शैतान के। प्रॉब्लम आ रही है कि हम हमेशा मिडिल में रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम दुनियावी भी रहे मगर खुदावन के अजीज भी रहे, और ऐसा होना नामुमकिन है। तो हर कोई इस साल में नए ड्रीम्स देख रहा है, नए विजन देखने की कोशिश कर रहा है। आप ऐसा कौन सा ड्रीम देख रहे हैं? आप ऐसा कौन सा नया काम इस 2023 में करना चाहते हैं जो 2022 में आपने नहीं किया? मैं आपके साथ में एक कंपैरिजन शेयर करना चाहता हूं जो कलाम के अंदर हमें मिलता है, और कलाम में अभी हमारी बहन ने हमारे साथ पढ़ा। यहां पर दो लोग हैं, ठीक है ना, दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने कलाम को सुना होगा तो आपने सीखा होगा। कौन से दो लोग हैं? नहीं, यूसुफ और दूसरा कौन है? हेरोदेस बादशाह, ठीक है। मरियम और हेरोदेस बादशाह, सॉरी यूसुफ और हेरोदेस बादशाह। यूसुफ के साथ क्या होता है? यूसुफ की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल जिंदगी है मेरे हिसाब से। कैसे? जैसे ही उसके साथ कोई काम होने वाला होता है उसको एक सपना आ जाता है, उसको एक ख्वाब आ जाता है, ठीक है। वो मरियम को पता लगता है कि मरियम कवारी गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब वो कहता है भाई मैं तो एक अच्छा आदमी हूं, इसने कुछ काम किया है गलत और मैं इसको छोड़ने पर हूं, ठीक है ना। क्योंकि या तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं या फिर आप कवारे हो सकते हैं, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती ना, बायोलॉजिकली दैट इज इम्पॉसिबल। तो उस इम्पॉसिबल को गॉड ने पॉसिबल कर दिया कि एक कुंवारी जो है अब वो प्रेग्नेंट है। अब जोसेफ को तो ये बात समझ नहीं आ रही, यस, हालांकि वो राइचस आदमी है और राष्ट्रवाद आदमी है, फिर भी उसकी समझ में ये बात नहीं आएगी, खासतौर से जो उसकी मंगेतर है, ठीक है ना। और अब वो असमंजस में है, वो परेशानी में है कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं एक अच्छा आदमी हूं, मरियम भी मुझे लगता था एक अच्छी औरत है, मगर अब उसने ये कलंक ले लिया अपने ऊपर और मैं क्वाइटली उसे छोड़ दूंगा। क्या होता है? फरिश्ता ख्वाब में आता है, कहता है ऐसी गलती मत कर, वो रूल कुदूस से हमला है और वो खुदा के बेटे को जलने पर है, who will be the savior of the world। अब जोसेफ घबरा जाता है, वो कहता है ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी आपने, I am not able, however let it be so। जो तूने कहा है मैं उसके अनुसार करूंगा, ठीक है, मैं अपनी मंगेतर को अपनाता हूं और उसके बाद जो तू कुछ कहेगा मैं वो करूंगा। चलो जो जर्नी में पहुंच गए, हम भी उस जर्नी में शामिल थे। पिछले दिनों 25 तारीख को हमने उसकी जर्नी को मना लिया, यीशु मसीह पैदा हो गया। अब आगे क्या होता है? फिर एक ख्वाब आ जाता है। पहला ख्वाब आया, उसके बाद 3 ख्वाब और आए। अगर आपका नाम को पढ़े, मैं मत्ती में लिखा है कि पहला ख्वाब क्या आया? उस बच्चे को लेकर फटाफट मिस्र को भाग गया। क्यों? क्योंकि हेरोदेस इसे खोजता है ताकि किसी तरीके से इसको और इसके जो आस-पास के लोग हैं उन सबको मरवा दे, ठीक है। जो यूसुफ है
वो सपने देखने वाला इंसान है। पहला सपना आया अपनी मंगेतर को अपना, दूसरा सपना आया जाकर मिस्र को इस बच्चे को लेकर भाग जा, उसके बाद सपना आया कि हेरोदेस जो है मर गया है, इसलिए क्या कर अब इजराइल को वापस चला जा। जब इजराइल को वो जाने वाला था, उसे पता है कि हेरोदेस का बेटा वहां पे बादशाही करता है, तो उसने वो प्लान ही बदल दिया। फिर एक ख्वाब आया, देखिए सारे ख्वाब आ रहे हैं। पता लगा मैं कल कोई नई नौकरी ज्वाइन करने पर हूं, मैंने कहा यार ये चर्च सॉर्ट छोड़ो, किसी और चर्च में जाओ, मुझे एक ख्वाब आ गया, ना करना ऐसा। बड़ा इजी हो गया, राइट। कल को ये बच्ची किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली थी, स्टर्लिंग में भी एडमिशन मिल गया, एडिनबर्ग में भी एडमिशन मिल गया। रात को उसे खुदा का फरिश्ता आया, बोला स्टर्लिंग वाली में जाइए बेटा, एडिनबर्ग में नहीं मत जाइए। कितना इजी हो जाए, राइट। तो पहला सपना आया मंगेतर को अपना ले, दूसरा सपना आया मिस्र को भाग जा, तीसरा सपना आया कि इजराइल को वापस चले जा। उसके बाद चौथा सपना आया, क्या सपना आया कि अब तू वो जो मारने वाले थे वो सब खत्म हो गए, गलील को वापस आ। कितनी इजी लाइफ है उसकी, ना। वो ड्रीमर है, वो ड्रीमर है। क्या हम सब जोसेफ बनना चाहते हैं, यूसुफ बनना चाहते हैं? क्यों नहीं बनना चाहते? अगर ऐसा हो और खुदा के साथ हमारा इतना बढ़िया रिलेशन हो कि खुदावन हर बार विजन में, हर बार ड्रीम्स में आकर जब भी हमारी जिंदगी में कोई बड़ा डिसीजन आना होता है, खुदावन हमारी जिंदगी में रात में आए, फरिश्ता आए और आगे हमें बता दे कि भैया ये काम ऐसे कर और ये काम ऐसे मत कर, या फिर यहां से लेकर वहां चला जा या वहां से लेकर यहां आ जा। दैट इज द ब्यूटी व्हेन यू हैव द रिलेशनशिप with Jesus Christ, when the Christ which was born in that stable is now born in your heart, जब वो आपके दिल में पैदा होता है और आपका रिलेशनशिप उस खुदा के साथ बना रहता है, खुदावन आपको किसी न किसी तरीके से, चाहे ख्वाब में, चाहे विजन्स में, चाहे किसी इंट्यूशन से, चाहे किसी और के जरिए, वो आपको बता देता है कि उसकी मर्जी आपकी जिंदगी में क्या होगी। खासतौर से कलाम से, आप कलाम को खोलकर पढ़े, कलाम आपको अपने आप बता देगा कि आपको किस राह पर चलना चाहिए और किस राह पर नहीं चलना चाहिए। अब जोसेफ जो है, जोसेफ इज अ ड्रीमर, जोसेफ इज अ ड्रीमर। मगर दूसरी तरफ कंपेयर करें, दूसरी तरफ कौन बैठा है? हेरोदेस बादशाह, ठीक है। अब हेरोदेस बादशाह जो है वो क्या कहता है वो उन मजूसियों से कहता है जो 3 किंग्स थे या वाइज में थे, जो भी थे, वो कहता है जाओ जाओ और जाकर पता लगाओ कि वो बच्चा कहां पैदा होना है, ताकि मैं भी जाकर उसको सिजदा कर सकूं। ना अब हम सब लोग जानते हैं कि उसके दिमाग में करप्शन था। ही रियली डोंट वांट टू डू व्हाट he is saying. He really don't want to do that. So what he's trying to do is he's trying to be a seeker. Now दुनिया में आप बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, वो कहेंगे या तो हम क्रिश्चियन हैं या फिर वो कहेंगे we are seekers, हम खोजी हैं, हम खोज कर रहे हैं। आप किसी भी एथीस्ट के पास जाए, वो बोलेंगे आप क्यों एथीस्ट हैं, आप नास्तिक क्यों बन गए, क्यों आप खुदा को नहीं मानते? उन्होंने बोलते हैं हमने बड़ा खोजा, हमने बड़ी रिसर्च करी, हमने बड़ा पढ़ने की कोशिश करी और एंड में कंक्लूजन निकला कि खुदा नाम की कोई चीज है ही नहीं, इट इज ऑल सुपरनैचुरल, नो सॉरी देयर इज नथिंग लाइक दैट, ये सब अंधविश्वास है या सुपरस्टिशन है, और इसकी वजह से हमने वो खोज को बंद कर दिया और अब हम उस खोज में शामिल नहीं है और हमने इस डिसीजन को अपना लिया कि खुदा है ही नहीं। That is what Herodes is doing. वो हेरोदेस बादशाह ये कर रहा है कि वो एक खोजी बनकर लोगों से कह रहा है तुम जाओ और जाकर खोज करो कि वो बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं, वो बादशाह कहां पर पैदा हुआ है, ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा कर सकूं। कलाम साफ साफ कहता है कि वो उसे सजदा करना नहीं चाहता था, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रिमेन द किंग। वो खुद बादशाह बनकर रहना चाहता था और नहीं चाहता था कि उसके साथ में कोई कंपटीशन खड़ा हो। वो चाहता था कि बचपन में ही, मां की कोख में ही या उस बच्चे के पैदा होते ही उसको मार डाला जाना चाहिए, ताकि मेरे लिए कोई कंपटीशन कभी आगे बढ़े ही नहीं, कभी मेरे लिए कंपटीशन आए ही नहीं। That's what he was trying to do. He was trying to play safe in his place. He was powerful and he know what he can do. उसके पास पावर थी, उसके पास ताकत थी, और वो चाहता था कि उस पावर का इस्तेमाल करके उस बादशाह को जो पैदा होने वाला है या
गया है किसी तरीके से मैं उसको एलिमिनेट कर दूं, उसको खत्म कर दूं। He was trying to be the seeker, he was trying to be the researcher, he was trying to be somebody who is still looking for God. उन 3 मजूसियों ने, उन वाइज मैन ने आकर कहा कि हमने अपने ग्रंथों में, अपनी किताबों में पढ़ा है कि वो बादशाह पैदा होने वाला है और ये उसका तारा है और ये सारी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज उसके साथ हो रही है। जितनी पेशेंट गोलियां थी वो सब पेशेंट गोलियां उसके साथ पूरी हो रही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी वहां पर 6 महीने से ऑलरेडी गर्भ में है। हर चीज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसीज जो पेशेंट गोलियां थी उसके अनुसार हो रहा है, उसके मुताबिक हो रहा है, मगर वो फिर भी उसको कबूल करने के लिए अपने आप को सरेंडर नहीं करता, बिकॉज ही ऑलवेज वांट टू बी द सीकर। नाउ एनीवे, व्हाट आर ड्रीम्स जो यूसुफ ने देखा? यूसुफ के जो ड्रीम थे, आजकल वो ऑफिस जैसे ड्रीम्स के ऑफिसेज हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। खुदा किसी स्पेशल को चुनकर ही उन ख्वाबों को दिखाता है, उन विजन्स को दिखाता है, उन बातों को बताता है जो उस समय कही गई थी या उन अपोस्टल्स को या उन प्रॉफिट को दी गई थी। हम में से अब उतने राइचियस लोग, उतने राष्ट्रबाज बचे ही नहीं जो खुदावंद से मुंह दर मुंह कर बात कर सके, जैसे मूसा खुदा से बात करता था, जैसे इब्राहिम खुदा से बात करता था, जैसे पौलुस या बाकी के जो वो थे, प्रेरित थे, रसूल थे, है ना, रसूल ही नहीं, रसूल थे, वो खुदा से, यीशु मसीह से बात किया करते थे। तो ड्रीम्स, व्हाट आर ड्रीम्स? ड्रीम्स आर अनइनवाइटेड। क्या हम ड्रीम्स को कभी सोचते हैं कि हमारे को क्या ड्रीम देखना है, क्या ख्वाब देखना है? नहीं, हम सोते हैं, ख्वाब अपने आप आ जाता है। अनइनवाइटेड, अनअनाउंस, अनएक्सपेक्टेड। हम बैठे यूके में, अमेरिका का ख्वाब आ रहा है नहीं? हम रहते जंगल में, हमें सिटी का ख्वाब आ रहा है। हम रहते जमीन पर है, आसमान का ख्वाब आ रहा है। ख्वाब की कोई लिमिट नहीं है ना? ख्वाब की कोई लिमिट नहीं होती। ख्वाब कितना बड़ा। अच्छा, मैं ख्याली पलाव की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं ख्याली पलाव की नहीं बात कर रहा जो आप बैठे बैठे देखते हैं, नहीं, मैं उन ख्वाबों की बात कर रहा हूं जैसे यूसुफ को ख्वाब में बताया गया कि तुम ये काम करना और ऐसा मत करना। मैं उन ख्वाबों की बात कर रहा हूं जो खुदावन आपकी जिंदगी में लेकर आता है। दे आर अनइनवाइटेड, दे आर अनएक्सपेक्टेड, और वो कुछ अजीब से होते हैं। हम उनको जज नहीं कर सकते, हम उनसे फेमिलियर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो ख्वाब है, हमारे पास उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। ख्वाब आना है तो वो आएगा, जिसको आता है वो आएगा, जिसको नहीं आता वो नहीं। कैसा कोई है ऐसा जिसको ख्वाब ना आता हो यहाँ पर? है ना, सबको आता है ख्वाब, तो सभी को ख्वाब आता है, हम सबको पता है ख्वाब किसे कहते हैं। और हम चाहे कितनी कोशिश कर ले ख्वाब ना देखने की, ख्वाब फिर भी हमारी जिंदगी में आएंगे। द इंटरवेंशन ऑफ गॉड इज ऑलवेज देयर, चाहे हम चाहे या चाहे ना चाहे। द इंटरवेंशन ऑफ गॉड, खुदा की कॉल, खुदा का इन्विटेशन, खुदा की बुलाहट हमेशा हमारे साथ रहती है। अब कई बार परेशानी ये होती है कि हम ख्वाब देखते हैं, जब सुबह उठते हैं भूल जाते हैं, राइट? जब हम ख्वाब देखते हैं, रात को ख्वाब देखते हैं, सुबह उठते हैं हम भूल जाते हैं, या हम उन ख्वाबों को कोई तवज्जो नहीं देते, या हमारे दिमाग में उस ख्वाब की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती और हम कहते हैं यार ख्वाब आया था, बस एक कल्पना थी, एक मिथ था, आके खत्म हो गया। मगर यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ ने उस अनएक्सपेक्टेड, अनइनवाइटेड, अनफेमिलियर ख्वाब को जो फरिश्ते ने उसे दिखाया, उसके ऊपर अमल किया, और अमल करने की वजह से ही वो खुदावन को, जो उसका बेटा था, जो आसमान से जमीन पर रूह कुदूस के वसीले भेजा गया था, उसको उस हेरोदेस से जो सीकर था बचा लिया। क्यों? क्योंकि उन ख्वाबों के ऊपर वो इंपॉर्टेंस दे रहा था, वो उन तमाम चीजों पर इंपॉर्टेंस दे रहा था जो खुदावन उसको दिखा रहा था, जो खुदावन उसको बता रहा था, जो हुक्म खुदावन उसे दे रहा था, वो उन तमाम हुक्मों को फॉलो कर रहा था। जोसेफ वॉज विलिंग टू गेट अप एंड गो। जोसेफ रिस्क लेने के लिए तैयार था। क्या वो चाहता तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर क्यों वहां पर उसका सेंसस के लिए जाता? वो रिस्क लेने के लिए तैयार थे, है ना? जब आप ख्वाब देखते हैं तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं।
उस अनफेमिलियर टेरिटरी में, उस अनएक्सपेक्टेड जगह पर, उस मिस्ट्री ऑफ गॉड में आप एंटर करने की हिम्मत रखते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स यही आपकी जिंदगी में लेकर आते हैं। अब्दुल कलाम इंडिया का एक प्रेसिडेंट हुए, अब उनकी डेथ हो गई। उन्होंने एक बार कहा था कि ख्वाब वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो है जो आपको सोने नहीं देते। राइट? दीपक भैया इस बात से वाकिफ हो, है ना? दोबारा बोलता हूं मैं, ख्वाब वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो है जो आपको सोने नहीं देते। ये वो ख्वाब जोसेफ देख रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड टेरिटरी में एंटर होने के लिए। वो कहता है यहां से भागकर मिस्र को चला जा। मिस्र को? वहां क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहां रहूंगा? यहां मैं गौशाला के अंदर अपने बच्चों को पैदा कर रहा हूं, अब तो मुझे कह रहा है मिस्र में चला जा। मैं अपने गांव वापस क्यों नहीं चला जाता? मैं अपनी जगह वापस क्यों नहीं जाता जहां मेरा घर है, जहां मेरा परिवार है, मेरे पास पैसा है? मैं तो यहां पर एक गधे को लेकर और थोड़े से कपड़े लेकर यहां पर आया हूं और ये बच्चा मेरे ऊपर पैदा हो गया है। तूने मैंने पहले ही कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता, ये बीवी मेरी अभी तक है नहीं, और तू मुझे कह रहा है कि मैं मिस्र को भागूं? He never asked that question. He never asked that question. उन दोनों की, मरियम की और उसकी जो आपस में कॉन्वर्सेशन है, वो तक रिकॉर्ड नहीं करी गई है मैथ्यू के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी कोई तवज्जो ही नहीं है। They just follow what God has asked them to do. मरियम से बोला गया तू हमला होगी पाक रूह के वसीले, उसने बोला लेट इट बी। यूसुफ को बोला मुगेतर को अपना ले, उसने बोला लेट इट बी। उसने बोला मिस्र को भाग जा, मिस्र को भाग। उसने बोला इजराइल को वापस आ जा, इजराइल वापस आ गया। गलील को चला जा, गलील चला। जैसा उससे कहा जा रहा है वो वैसा ही फॉलो कर रहा है, बिकॉज ही हैज दैट कनेक्शन विद क्राइस्ट गॉड, ही हैज अ कनेक्शन विद द फादर ऑलमाइटी। वो रास्तबाज आदमी है और रास्तबाजी से खुदा के कलाम को सुनता है, समझता है। ही इज विलिंग टू टेक दैट रिस्क, ही इज विलिंग टू एंटर इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। हम यूना नबी की तरह हैं। कहा गया नीमले को जाना, हम भाग रहे तर्शीश को। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे स्किल्स, हमारी एबिलिटी, हमारी वेल्थ, जो कुछ भी हमारे पास है, खुदा ने हमारे को इन सम वे दी है, वी शुड यूज इट फॉर ग्लोरी ऑफ द गॉड। यस वी शुड, बट वी शुड डू इट इन द वे गॉड वांट्स अस टू डू, हाउ ही कमांडिंग अस टू डू। जैसे वो हमें हुक्म देता है, हमें उस तरीके से खुदा की खिदमत करनी है, ना कि किसी और तरीके से। वो कह रहा है नीनिवे को जाकर उनको रिपेंटेंस प्रीच कर। वो कहता नहीं, मैं तो तर्शीश को भागूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं। वो कह रहा है अपने नेबर को जाकर, अपने पड़ोसी को जाकर कुछ खाने के लिए 2 रोटी दे दे। नहीं, मैं तो वो चैरिटी है ना बच्चों की, मैं वहां चैरिटी में पैसा भेजूंगा। इंडिया में कत्लेआम हो रहा है, मैं तो वहां पैसा भेजूंगा। पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, मैं वहां पैसा भेजूंगा। मेरे घर में पड़ोसी भूखा मर गया, मुझे उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो स्किल्स है, मेरे पास जो एबिलिटी मुझे सोचने की है, वो चैरिटी को पैसा देना ज्यादा जरूरी है पर इस वक्त मैं अपने पड़ोसी। क्यों? क्योंकि मेरा पड़ोसी जो है बड़ा गाली गलौज करता है मेरे साथ। अब मरता रहे, खुदा तुझे पनिशमेंट दे रहा है क्योंकि तूने मुझ पे हाथ उठाया। समझ रहे मेरी बात? हम इस तरीके से अपने खुदा को नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी। वी आर नेवर अ ड्रीमर, वी आर अ सीकर। हेरोदेस की तरह हम खुदा को, खुदा के बेटे को, खुदा के हुक्मों को किसी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, कहीं उसकी बादशाहत ना आ जाए। और हम जो अपनी बादशाहत में बैठे हैं, माय वे, कहीं हम उसको लूज ना करें। जोसेफ वाज रेडी टू टेक अप द रिस्क। जोसेफ वाज हैप्पी टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड गो टू मिस्र। इजिप्ट में जाने के लिए तैयार। हेरोदेस ने ऐसा किया नहीं, अपने तख्त पर बैठा है और कहता है जाओ वो काम करके आओ। खुद नहीं हिल रहा। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल आदमी है, वो अपनी बादशाह में बैठा है। दूसरों से कहता है जाके ढूंढ के आओ। फिर अब वो पुलिस से पता मजूसी वापस नहीं आए, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, भैया ऐसा करो, जितने बच्चे हैं वहां पर मार दो। मैं नहीं जा रहा मारने के लिए, तुम जाओ क्योंकि मुझे उस बादशाह को एलिमिनेट करना है। एंड दैट इज व्हाट वी ऑल डू व्हेन वी डू द मिनिस्ट्री, व्हेन वी ट्राई टू डू थिंग्स इन आवर ओन वे। कई बार अपने बच्चों के साथ बड़ी सख्ती करते हैं, बहुत सख्ती करते हैं। सख्ती करके कहते हैं नहीं तुझे खुदा के रास्ते पर चलना ही चलना है। इट मीन्स वी डोंट हैव फेथ ऑन आवर गॉड। इट मीन्स वी डोंट हैव फेथ ऑन आवर किड्स।
Sometimes we have to take that risk, the leap of faith. کہ خدا جیسے تو نے مجھے بگڑے ہوئے آدمی کو تو نے پادری بنا دیا, ویسے میرے بچوں کے ساتھ بھی تو کچھ نہ کچھ کر ہی دے گا. You have to have faith. میرے ماں باپ کو مجھ پہ وشواس تھا کہ یہ جا رہا تو گنڈا گردی پہ ہی ہے, مگر گنڈا گردی سے خدا اس کو موڑ کر پادری بنا دے گا. آپ یقین مانیں جب میں اپنے چرچ میں تھا میرے کو کوئی سوچتا نہیں تھا کہ یہ پادری بنے گا کسی صورت میں, مگر خدا نے اپنے آپ وہ ناک میں لکیر ڈال کے مجھے ایسے موڑا, مجھے درد بھی نہیں ہوا سمجھے. And then I was passionate to just work for the Lord, and I am here standing in front of you. ابھی مجھے کوئی باہر روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھے کہ یار گنڈا ہی ہوگا یار, پادری تو کیسے لگتا نہیں ہے نا. God will tend you to follow Him, and that is the beauty of Christ Jesus, that He wants to maintain a relationship with you. وہ آپ کے ساتھ بادشاہت نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ کی بادشاہت میں دخل اندازی کرتا ہے تاکہ اس کی بادشاہت آپ کی زندگی میں شامل ہو سکے, so you can belong to the kingdom of God instead of kingdom of this world. And that's what Christ is trying to do for you and for me. Tell me which is better kingdom? The kingdom of God. جہاں بکری کا بچہ اور شیر ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے, جہاں پر وہ ایک ننھا بچہ جس کا دودھ چھڑایا گیا ہے وہ سانپ کے ہاتھ میں اپنا بل ڈالے گا, وہ سانپ کے بل میں اپنا ہاتھ ڈالے گا. This is the kingdom of God. God wants to establish for you and for me. And that's what Joseph was willing to get into that unexpected place. He was ready to leave home when Herod just stayed home. Joseph was looking forward کہ اب میری زندگی میں کیا آئے گا, میں مصر کو جاؤں گا میری زندگی میں کیا آئے گا, اب میں اسرائیل کو واپس جاؤں گا اب میری زندگی میں کیا آئے گا, یہ بچہ میرے پاس ہے اب میری زندگی میں کیا آئے گا, اس عورت کو میں نے اب سے شادی کر لی اب میری زندگی میں کیا آئے گا. ایسے ہی ہماری زندگی میں خدا نئے لمحے جوڑتا ہے, نئے سال جوڑتا ہے. ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ اب اس نئے سال میں میرے لیے کیا آئے گا. I am ready to take that challenge, God. I am ready. جو کچھ بھی تو میری زندگی میں لے کر آئے گا, جو بھی چیلنج, چاہے انسکسیسفل چاہے سکسیسفل, جو بھی تو میری زندگی میں لے کر آئے گا, میں اس کو تیری مرضی مان کر I'll be happy to walk beside you. I'll be happy to hold your hand. ہم چاہے اندھیارے میں چلیں, ڈارکنس میں چلیں, چاہے لائٹ میں چلیں, doesn't really matter. جب آپ اندھیارے میں چلیں تو ایک کام کریں, پوچھیں کیا, hold the hands of Christ. وہ روشنی ہے, وہ کہتا ہے میں دنیا کی روشنی ہوں. جب دنیا کی روشنی کا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے تو اندھیارا آپ کے لیے, اندھیارا کیا کہتے ہیں, ٹفر, اندھیرا, تب اندھیرا آپ کے لیے اندھیرا نہیں رہے گا, کیونکہ جو روشنی ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے چل رہی ہے, تو وہ آپ کو اس اندھیرے سے دوسرے اندھیرے, دوسری روشنی تک اپنے ساتھ اپنا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے گا. تو success or unsuccess doesn't really matter. What this year will bring to you doesn't really matter. What you bring to the table to the God, that much matter more for each one of you. That is what we need to look for. Herodes was looking in the backward. وہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں, بادشاہ رہنا ابھی رہوں گا, میں بادشاہ تھا, بادشاہ ہوں اور بادشاہ رہنا چاہتا ہوں. جوزف نے بولا میں کمارا تھا, اب باپ ہوں, اب شادی شدہ ہوں, اور اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. I am ready for it, God, bring it on. That's what Christ is doing for you and me. He is bringing the new mysteries. He is revealing the new word of God on you. Read it. Read the word of God and God will help you. Joseph جو تھا, he wants to protect his son when Herodes want to destroy. وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے ان تمام رزقوں کو لے رہا تھا, ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہا تھا, ایک دروازے سے دوسرے دروازے کھٹکھٹا رہا تھا, مگر ہیرودیس جو اپنی بادشاہت کے اندر اپنے محل میں بیٹھا تھا وہ دوسروں کو ڈسٹروائے کرنے پر تھا. جوزف سے بڑے عمدہ مقام پر یہ انسان ہیرودیس بیٹھا ہے. جوزف ایک ادنا سا آدمی ہے, کارپینٹر ہے, اس کے پاس کیا پاور ہے, کوئی طاقت نہیں ہے. گدے کے بچے کو لے کر وہ اپنی بیوی کو بٹھا کر لے جا رہا ہے. یا ہیرودیس جس کے بعد پوری بادشاہت ہے, وہ دنیا کو, وہ اس بادشاہت کو, وہ دوسرے بچوں کو ڈسٹروائے کرنے پر تلا ہے. یہاں یہ ادنا سا آدمی اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے, اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے. That is what dreams do to you.
یہ خواب ہماری زندگی میں کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک نئی ایکسپیکٹیشنز کو لے کر آتے ہیں, ایک نئی امید کو ہمارے ساتھ لے کر آتے ہیں. اینڈ when that happens, you are happy to intervene in the mysteries of God. You are happy, خداوند جو آپ ہماری زندگی میں نئے سال میں لے کر آئیں گے, I am happy to be into that. جوزف دنیا کی لائف کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اپنے بچے کی, اپنی بیوی کی, اپنی لائف بچانے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں پر ہیرودیس اپنی بادشاہت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اینڈ دیٹ از the difference between a dreamer and a seeker. A searcher, وہ ایک کھوج میں لگا ہے, اور کھوج کبھی اینڈ نہیں ہوتی میرے بھائیوں بہنوں. جوزف is a dreamer, Herod is a searcher. Now the problem is, یہ جوزف اور یہ ہیرودیس, یہ دونوں ہمارے اندر ہیں. اب آپ کس کو زیادہ فیڈ کرتے ہیں؟ جوزف کو خوابوں کے ذریعے, تو جوزف آپ کی زندگی میں زیادہ کام کرے گا. جو ہیرودیس جیسا بھیانک بننا چاہتے ہیں, تو ہیرودیس آپ کی زندگی میں زیادہ کام کرے گا. اگر آپ خدا کو اپنی ڈھونڈ ہی رہے, کب تک ڈھونڈیں گے خدا کو؟ کب تک؟ خدا تو بڑا پہلے آپ کے اوپر ریویل ہو چکا ہے, آپ کے بپتسمے میں ریویل ہو چکا ہے, آپ کے پیدائش میں ریویل ہو چکا ہے. وہ آپ کو بار بار آپ کو ریویل کراتا ہے اپنے آپ. وہ ہمارے پہ کتنی بار ریویل ہو چکا ہے. ہم ابھی بھی اس کی کھوج میں پڑے ہیں, ہم ابھی تک اس کی چاہ میں پڑے ہیں کہ کب خدا ہمارے کو ویژن دے گا, کب خدا ہمارے سامنے آئے گا, کہے گا ہیرسن, سمت ہیرسن, سمت ہیرسن. نا, God doesn't do that. That office is being seized, my friends. Those offices being seized. پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب اگر آپ پڑھ لیں, بہت سارے لوگ آپ کو ان چیزوں کو, ان میریکلز کو, ان معجزوں کو دکھا دکھا کے آپ کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کریں گے. خدا کے پیچھے نہیں, اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کریں گے. And this is what God don't want you to do. He don't want you to follow because اس نے میریکل کیا ہے. اس لیے وہ آپ کو اپنے پیچھے نہیں چلانا چاہتا, کیونکہ وہ آپ کو شفا دے گا, آپ کو برکت دے گا. میں بہت سے پوچھتا ہوں, آپ میں سے کون سے لوگ ہیں جو یشوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں, اور کیا ریزن ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ ہمیں سورگ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, وہ ہمیں سورگ لے کے جائے گا. That is a selfish motive to follow Jesus Christ. Follow Jesus Christ because of Jesus Christ. That's it. یہ میں آپ کو نہیں پتہ کی بات بتا رہا ہوں. ساری دنیا یشوع مسیح کو, جو بھی مسیح بھی ہے, وہ یشوع مسیح کے پیچھے اس لیے چلتے ہیں کیونکہ وہ انہیں سورگ لے کے جائے گا. سورگ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فردوس کہنا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو ہیون میں لے کے جائے گا, یا وہ آپ کو برکت دے گا, یا وہ آپ کو شفا دے گا, یا وہ آپ کو بڑی سکسیس دے گا, یا آپ کے بچوں کو بڑی سکسیس دے گا. آپ کے بچوں کی شادیاں اچھی جگہ پہ ہوں گی, ان کو نوکری اچھی جگہ پہ ملے گی, یونیورسٹی میں ایڈمیشن اچھی جگہ پہ ہوگا. ہماری دعائیں بھی ایسے ہی ہے نا. ہم دعا خدا سے اس لیے نہیں کرتے تاکہ اس سے بات کر سکیں, ہم دعا خدا سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے کچھ مانگ سکیں. Every time we don't sit and have a conversation with you. یہ بچی آپ کے ساتھ کبھی بات کرتی ہے تو کہتی ہوگی, پاپا گھر آتا ہے جب, پاپا کیسے ہو, کیا کھایا, کیا پیا. یہ تو نہیں کہتی پاپا پاکٹ منی. ہر بار تو پاکٹ منی کی تو بات نہیں کرتے نا اپنے باپ سے. ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے سے کانورسیشن کرنا چاہتا ہے, مگر ہم ہمیشہ اپنی عرضیاں اپنی جیب میں سے نکال کے اس کے آگے ڈالتے رہتے ہیں. کہتا ہے اب یہ لے لیں, اب یہ کر دیں, اب یہ کر دیں. God doesn't do that. We are selfish and we are not Christian if you do that. ہم مسیح نہیں ہیں, ہم خداوند کی بھیڑیں نہیں ہیں, ہم بکریاں ہیں جو ایکچولی بھیڑوں کا کھانا کھانے میں لگی پڑی ہے. ہم بکریاں ہیں, اور وہ بکریاں اپنے الٹے ہاتھ پہ رکھے گا جو نرک میں جائے گی دوزخ کی آگ میں, اور وہ اپنی بھیڑوں کو صرف رائٹ ہینڈ پہ رکھے گا جو اس کے ساتھ کنگڈم آف گاڈ میں شامل ہوگی. If you are a searcher, you will stay as a goat. اگر آپ کھوج کرنے میں لگے ہیں تو بکریاں رہ جائیں گے. مگر اگر آپ ڈریمر ہیں, you dream with God and you are happy to be in that unexpected place where God would like to take you. یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ کیا ہوا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کیا ہوا تھا؟ سر کاٹ دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہیرودیس, یہی آدمی جو یہاں پر سرچر ہے, اس کو کہا تھا کہ تو نے اپنے بھائی کی بیوی کو غلط رکھا ہوا ہے. It is unlawful. He spoke the truth. And that's the reason he was beheaded. Are you happy to be beheaded? Any one of you? کٹانا چاہیے خدا کے لیے اپنا سر؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں. اب جان دا بیپٹسٹ جو اس کا خود کا بھائی تھا, جو اس کے لیے بڑا عزیز ہوگا, ہے
उसकी गर्दन कट करनी पड़ी, खुदा ने बचाया नहीं उसको। क्या खुदा उसको नहीं बचा सकता था? वो स्टीफनस को, जो खुदा का नाम प्रचार कर रहा था, स्टीफन को उन्होंने पत्थर मार मार के रोड के ऊपर मार दिया, क्या खुदा उसको बचा नहीं सकता था? क्यों? क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज द पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। परसिक्यूशन इज द पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। सो बी अ ड्रीमर। स्टीफन ने कभी सोचा होगा उसको पत्थर मार के मार दिया जाएगा? He was happy to be at the unexpected, and he was happy to die for Christ. That was Christianity is for you and me. If you follow Christ because you want to go to heaven, if you follow Christ because आपको healing चाहिए, if you follow Christ because आपको बरकत चाहिए, you are selfish. I am selfish, and that is not the reason we should follow Christ. We should follow Christ just for the sake of Christ, because he is worth it. That is what Christ is doing for you and for me. So मेरे भाइयों बहनों, ये नया साल जो आपकी जिंदगी में आए, तो डोंट टेल कि गॉड इट इज माय वे। लेट गॉड डिक्लेयर हिज वे इन योर लाइफ, एंड दैट विल बी द ब्यूटी ऑफ 2023. Don't expect what the 2023 will bring to you. Just say, I will bring something to you, and that will be marvelous. Because God is holding my hand. कितना भी अंधेरा हो, मैं खुदा का हाथ नहीं छोड़ूंगा, ना खुदा मेरा हाथ छोड़ेगा. And God will keep renewing His promises. वो अपनी सारी जो promises हैं आपके साथ जो उसने किए हैं, I will never leave you, I will never forsake, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, and I'll be with you forever. He will remain in that promise forever for you and me. 23 आ जाए, 24 आ जाए, 28 आ जाए, हजारों साल बीत जाए, He is never going to change for you and for me. And that's what Christ is doing for you and for me. God bless you. Thank you so much.